Jai Bharat, dear all Advityans. I hope you are doing well. In our last lecture, we discussed about the cytoskeleton structure or a component which includes two main components, and that is microtubules and microfilaments. Microtubules are made up of a tubulin protein, and it is a hollow structure which has alpha and beta subunit, and the association of this two unit required GTP and calcium ion, right? Other we discuss about the microfilament. Microfilament is a solid structure and made up of actin protein by the polymerization, right? And this structure do not have any kind of lumen in it, so it is a solid structure. Now we are going to proceed for the next structure, that is cilia and flagella. Both are locomotory structure, right? Cilia and flagella both are locomotory structure. They are microscopic, hair-like and motile structure, right? Okay, now if we talk about the cilia and flagella, particularly first we are going to discuss about the cilia. Cilia are found in all ciliated protozoan protists, right? That include, for example, paramecium. So protist, those who are in a group of protozoans, they all are ciliated, and the example is paramecium. Other than that, flame cell. Flame cell is related with the excretory, we can say that the removal of the excretory substance that we have already discussed, right? Then Trochophore larva of Nereis, which belongs to phylum Annelida, right? Trochophora is the name of a larva. Then Bipinnaria larva, right? This is the larva of starfish. It is also found in the trachea, means respiratory tract. It is also found in the fallopian tube to move the secondary oocytes, and it is also found in the kidney, or we can say that the nephron, which is a functional unit of kidney. So these are the part where cilia are found, and the basic function of cilia is what? Basically it is a locomotory structure, or we can say that by movement of the cilia, one substance can translocate from one part to the another part. Okay, now the second one is flagella. So flagella are found in flagellated protists. So basically there are two types of protists. Some are having a flagella and the other one having a ciliate. One more important thing that we have to discuss here is that flagella are mostly found in number of 1 to 2, right? And it is a longer structure as compared to the cilia. Cilia are many, numerous, right? And their structure is smaller, although the internal structure of cilia and flagella are same. Okay, so flagella are found in a flagellated protist. It is also found in the collar cell of spongy, right? What is the function of that collar cell? Collar cell is related with the, we can say that it is for the movement of water or any food particles from one end to the another end. Okay, spermatozoa of animal, basically it is a sperm, it is a motile structure. Zoospore of alga, which is a motile spore. Okay, they are absent in red alga, blue-green alga, which is basically a cyanobacteria, angiosperm and arthropoda. So flagella are found in flagellated protist, collar cell of spongy, spermatozoa of animals, and zoospore of alga. Where they are absent in blue-green alga, red alga, angiosperm and arthropod. Okay, flagella and cilia both are, we can say that they are having a two component, right? Okay, so ultrastructure of cilia and flagella is same, and it is formed by two parts. One is protoplasmic sheath. The one is what? Protoplasmic sheath. See, this is the cytoplasmic part, this is the cytoplasm, right? And this structure is nothing but the plasma membrane. So towards the cytoplasmic part, near to the plasma membrane, we have one structure. That structure is nothing but the basal granule. What it is called? Basal granule. This basal granule form this flagella, and that flagella is moved out from the plasma membrane. So at the base of this flagella, there is a modification of plasma membrane, and that modification is nothing but what it is called? Protoplasmic sheath. What it is called? Protoplasmic sheath. So that protoplasmic sheath is slight protuberance around the flagella or at the base of flagella, right? And that is basically a modification of plasma membrane. So protoplasmic sheath, right? That is one of the component of cilia and flagella. It is outer
two layer because it is formed by plasma membrane and it is continuous with the plasma membrane, क्योंकि वो plasma membrane का ही क्या है मॉडिफिकेशन है, जहां से फ्लैजेला फिर या फिर सिलिया क्या होंगे डेवलप होंगे, राइट। ओके, नाउ the second part is axonomy. The second part is what? Axonomy or axial filament. Okay, what is axonomy or axial filament? Supposing that this one is the cilia and here we have long flagella, right? So at the base we have protoplasmic sheath, whether it is a cilia or flagella, and now whatever the part is remain that form a axis of cilia and flagella, it is known as axonomy or axial filament, right? This axial filament, whether it is a cilia or flagella, is made up of 2 central microtubule and 9 peripheral doublet. Okay, now what is that? Okay, so first of all, it is a central and contractile part. Axial or axonema is what? It is a central and contractile part and made up of 9 peripheral and 2 central microtubules. So this is a 2 central microtubule and around this there are 9 microtubule, but actually that each of the microtubule is form a doublet. So in each of the group there are 2 microtubule and such 9 doublet are found around the central microtubule. Okay, now if we talk about the central microtubule, there are 2 central microtubules, C1 and C2. Now which one is C1 and C2? If there is an outgrowth of short protein stalk-like structure, that ring will be considered as a C1. Here if you find out that there is a green color part which is slightly a protein stalk, that is considered as a C1 ring and the other one is C2. C1 microtubule and C2 microtubule, both are made up of 13 protofilament. How many? There are 13 protofilament, and this protofilament is made up of dynein protein, right? It is made up of what? Dynein protein. So C1 and C2, these two together, central tubule, each of the tubule made up of 13 protofilament, which is made up of what? Which is made up of dynein protein. Other thing is that each of the central tubule having a diameter of 250 angstrom, so 250 each, and these 2 tubule are remain away from each other at the distance of 360 angstrom, right? But that 360 angstrom by this space, basically these 2 tubule are connected by what? Double bridges, right? So ये दो जो microtubule है C1 and C2, वो दोनों का डायमीटर कितना है? 250 एंगस्ट्रॉम, लेकिन वो दोनों कनेक्टेड है किससे? ब्रिज से, राइट? ओके, और हर एक माइक्रोट्यूब्यूल है, ईच ऑफ द सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल इज मेड अप ऑफ 13 प्रोटोफिलामेंट विच इज मेड अप ऑफ डायनिन प्रोटीन. तो हर एक माइक्रोट्यूब्यूल जो 250 एंगस्ट्रॉम और उन दोनों के बीच में जो गैप है दैट इज अराउंड 360 एंगस्ट्रॉम. सारी चीजें डिटेल में आपको याद रखनी है, राइट? ओके, नाउ 2 सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल ईच 250 एंगस्ट्रॉम इन डायमीटर एंड इंटरपेज मीन्स गैप है उसके बीच में एट 360 एंगस्ट्रॉम. ईच हैज 13 प्रोटोफिलामेंट. ठीक है, दोनों जो है उसमें कितने प्रोटोफिलामेंट है? 13 प्रोटोफिलामेंट जो है वो उसमें है, राइट? ओके, बोथ सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स आर सराउंडेड बाय अ कॉमन central sheath which is made of protein and are also interconnected by a double bridges. दोनों central tubule जो हैं वो interconnected है by double bridges और उसके आसपास एक thin protein layer है, ठीक है? That is known as a protein sheath. उसको क्या बोलेंगे हम? Protein sheath. ठीक है, चलिए next point. Peripheral microtubule are 9 in number and each is a doublet. ऐसे पेरिफेरी में ऐसे 9 डबलेट है. हर एक डबलेट में 2 माइक्रोट्यूब्यूल है, ए एंड बी. कौन कौन सी है? ए माइक्रोट्यूब्यूल एंड बी माइक्रोट्यूब्यूल. ए माइक्रोट्यूब्यूल इज मेड अप ऑफ 13 प्रोटोफिलामेंट एंड बी माइक्रोट्यूब्यूल मेड अप ऑफ 10 प्रोटोफिलामेंट. लेकिन ये दोनों किससे बने हैं? दे बोथ आर मेड अप ऑफ ट्यूब्यूलिन प्रोटीन. ठीक है, तो ए माइक्रोट्यूब्यूल जो है उसमें 13 प्रोटोफिलामेंट है, बी माइक्रोट्यूब्यूल है उसमें 10 प्रोटोफिलामेंट है और दोनों जो है वो प्रोटोफिलामेंट प्रोटीन कौन से बना है? ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से बना है. वाइल इन केस ऑफ सेंट्रल ट्यूब्यूल द प्रोटीन इज डायनिन. याद रखना. चलिए, इसके अलावा अगर हम बात करें, ए ट्यूब्यूल हैज 2 आर्म. वन इज दिस वन इज
आउटर आर्म, इसको हम क्या बोलेंगे, आउटर आर्म, एंड द अदर आर्म which is a shorter one, right, this arm is known as inner arm. ऐसे दो आर्म है which is connected to the A microtubule. किससे कनेक्टेड है वो, A microtubule of the doublet. अब ये दोनों माइक्रोट्यूब्यूल जो है टुगेदर दे फॉर्म अ डबलेट. सच डबलेट इज कनेक्टेड विद द नेक्स्ट डबलेट, राइट, बाय ए बी लिंकर. किससे कनेक्टेड है वो, बाय ए बी लिंकर. अब वो ए बी लिंकर क्या है, यहां पे जो ए माइक्रोट्यूब्यूल है उसका जो शॉर्ट आर्म है या फिर इनर आर्म है, दैट विल कनेक्टेड टू द बी माइक्रोट्यूब्यूल ऑफ द नेक्स्ट डबलेट. नेक्स्ट डबलेट के बी माइक्रोट्यूब्यूल से वो कैसे हैं, कनेक्टेड. और वो जो कनेक्टेड है दैट इज नोन एज ए बी लिंकर. उसको क्या बोलते हैं, ए बी लिंकर. एंड दैट ए बी लिंकर इज मेड अप ऑफ नेक्सिन प्रोटीन. किससे बना है वो, नेक्सिन प्रोटीन. तो सेंट्रल ट्यूब्यूल जो है वो किससे प्रोटीन से बना है, डायनिन से. डबलेट जो माइक्रोट्यूब्यूल है वो किस बना है, ट्यूबुलिन से. और डबलेट के जो कनेक्टेड पार्ट है दैट इज ए बी लिंकर. एक डबलेट का ए माइक्रोट्यूब्यूल नेक्स्ट डबलेट का बी माइक्रोट्यूब्यूल के साथ कनेक्टेड है दैट इज ए बी लिंकर. वो कौन सा प्रोटीन है, नेक्सिन प्रोटीन है. ठीक है, चलिए. सो पैरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल आर 9 इन नंबर एंड ईच इज डबलेट मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट ए एंड बी. ए सब यूनिट में कितने प्रोटोफिलामेंट है, 13. बी में कितने हैं, 10. A subunit is slightly inner and is formed of 13 protofilament. A जो है उसमें कितने प्रोटोन फिलामेंट है, 13 प्रोटोफिलामेंट है. It has 2 arm in clockwise direction. 2 आर्म है, एक आउटर आर्म एक इनर आर्म, राइट. 2 clockwise direction. Inner arm is attached to B subtubule while outer arm ends in a hook. तो A जो आर्म है दैट विल कनेक्टेड टू द B माइक्रोट्यूब्यूल ऑफ द नेक्स्ट डबलेट. और A आउटर आर्म जो है वो कैसा रहेगा, वो फ्री रहेगा, हुक लाइक. ठीक है, तो A माइक्रोट्यूब्यूल में 2 आर्म है, वन इज शॉर्टर एंड इनर, अदर वन इज लार्जर एंड आउटर. ठीक है, उसमें जो इनर आर्म है दैट विल कनेक्टेड विद द नेक्स्ट डबलेट विथ इट्स B माइक्रोट्यूब्यूल by AB linker which is made up of nexin protein. Okay, each A subunit give rise to a radial spoke with a dense material thickening called spoke head near the central sheath. अब देखिए यहाँ पे जो है ये मैंने डबलेट बनाया है. ठीक है, ये डबलेट जो है वो आप ऐसे समझो कि ये पेरिफेरी में इसके आसपास, ये डबलेट जो है वो यहाँ पे है. ठीक है, तो उसका मतलब ये सेंट्रल ट्यूब्यूल यहाँ नीचे होगा. तो वो जो डबलेट है उसमें से एक ऐसे ए ट्यूब्यूल से कनेक्टेड ऐसे एक रेडियल स्पोक जो डेवलप होगा. क्या डेवलप होगा, रेडियल स्पोक. और उसका जो एंड होगा दैट विल बी थिकनिंग पार्ट. ठीक है, और वो कनेक्टेड होगा किसके साथ, वो सेंट्रल ट्यूब्यूल के साथ कनेक्टेड होगा. यहाँ पे मैंने सेंट्रल ट्यूब्यूल ऊपर दिखा है. ठीक है, लेकिन जब हम पूरा स्ट्रक्चर देखेंगे तो वो चीज़ें जो आपको क्लियर हो जाएगी. तो ए सब यूनिट जो है वो माइक्रोट्यूब्यूल का, उससे एक रेडियल स्पोक डेवलप हो रहा है. दैट रेडियल स्पोक हैविंग अ बटन लाइक स्ट्रक्चर एट द एंड which will connected with this protein sheath which are present around the central tubule. उसके साथ वो कनेक्ट होगा. ओके, नाउ यहाँ पे देखिए ये हमने एंटायर डायग्राम जो बनाया है. अब यहाँ पे देखिए कि ये दो जो हैं दिस आर द 2 सेंट्रल ट्यूब्यूल. वो दोनों क्या है, वो दोनों जो है वो क्या है, दिस आर द 2 सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल. और वो सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल को हमने क्या लिखा है, सिंगलेट, क्योंकि वो एक एक है. सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल क्या लिखा है, सिंगलेट, क्योंकि क्या है वो एक एक. और उन दोनों को कनेक्ट करते हुआ क्या है, सेंट्रल ब्रिज. और वो ब्रिज का लेंथ कितना होगा, 360 एंगस्ट्रॉम. और हर एक सिंगलेट माइक्रोट्यूब्यूल है उसका डायमीटर कितना है, 250 एंगस्ट्रॉम. ओके, नाउ ये सारे पेरिफेरी में ऐसे 9 क्या है, डबलेट. ठीक है, ये सारे जो है वो क्या है, दे आर नथिंग बट द डबलेट. ठीक है, अब हर एक डबलेट में जो शॉर्ट रिंग है, स्मॉलर रिंग दैट इज ए रिंग, और जो लार्जर रिंग है इट इज नथिंग बट द बी रिंग. ठीक है, स्मॉलर रिंग जो कौन सा है, ए रिंग. लार्जर रिंग जो कैसा है, बी रिंग. अब जो स्मॉलर रिंग है ए रिंग विच इज मेड अप ऑफ 13 प्रोटोफिलामेंट ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन. उसके 2 आर्म हैं, एक ये ऑरेंज वाला विच इज आउटर आर्म, और एक जो है दैट इज ब्लू वाला दैट इज इनर आर्म. द इनर आर्म जो है दैट विल कनेक्टेड विद द बी माइक्रोट्यूब्यूल ऑफ द नेक्स्ट डबलेट. तो हर एक में देखिए कि ए बी. ठीक है, एक डबलेट का ए ट्यूब्यूल नेक्स्ट डबलेट के बी ट्यूब्यूल के साथ कनेक्टेड है बाय ए बी लिंकर. और वो ए बी लिंकर जो है वो किससे बना होता है, नेक्सिन. तो नेक्सिन जो है दैट इज ए बी लिंकर. नेक्सिन जो क्या है, इट इज नथिंग बट द ए बी लिंकर. क्या है वो,
ए बी लिंकर। इसके अलावा अगर हम ए ट्यूब्यूल की बात करें तो ए ट्यूब्यूल में से रेडियल फॉर्म में टूवर्ड्स द सेंटर, कहां पे, टूवर्ड्स द सेंटर, ऐसे देखिए स्पोक लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, उसका एंड जो कैसा बल्जिंग फॉर्म एंड है, दैट बल्जिंग फॉर्म एंड इज कनेक्टेड विद द प्रोटीन शीथ विच इज फाउंड अराउंड द सेंट्रल ट्यूब्यूल, उसके साथ वो कनेक्ट हो जाएंगे। तो उसका मतलब ये है कि ये पूरा जो स्ट्रक्चर वो कैसा है, इट इज अ व्हील लाइक स्ट्रक्चर। तो व्हील का जो सेंटर पार्ट है दैट फॉर्म अ एक्सिस, अब वो सेंट्रल पार्ट अगर रोटेट हो रहा है तो पूरा व्हील जो क्या होगा, रोटेट होगा, ठीक है। तो सेंट्रल कैनाल है, वो सेंट्रल कैनाल के आसपास क्या है, प्रोटीन शीथ। जब वो रेडियल स्पोक जो है उसका जो ऊपर का जो बटन लाइक स्ट्रक्चर व्हेन दे कनेक्ट विद द प्रोटीन, तो जैसे ही सेंट्रल कैनाल जो मूवमेंट करेगा पूरा प्रोटीन शीथ जो है वो मूवमेंट करेगा। अगर वो मूवमेंट करेगा तो बाहर क्या है, रेडियल स्पोक, वो भी मूवमेंट करेंगे और उससे ओवरऑल एक्सोनीमी या फिर एक्सल फिलामेंट जो क्या होगा वो मूव जो है वो करेगा। ओके, दूसरा एक स्ट्रक्चर आपको याद रखना है कि ये पूरे स्ट्रक्चर के आसपास देखिए ये जो पार्ट आपको दिख रहा है इट इज नथिंग बट द, यहां पे मैंने क्या लिखा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या है वो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पार्ट, लेकिन टेक्निकली वो क्या है, इट इज अ प्रोटोप्लाज्मिक शीथ। अभी जो हमने डायग्राम बनाया था तो हम कुछ ऐसा बना रहे थे, ये सपोज प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और इसमें से क्या डेवलप हुआ है, दिस इज द प्रोटोप्लाज्मिक शीथ, और उसके बेस से ये क्या हो डेवलप हुआ है, ये सपोज फ्लैजेला डेवलप हुआ है। तो यहाँ पे अगर ये पूरे स्ट्रक्चर सिलिया के फ्लैजेला के पूरे स्ट्रक्चर के आसपास अगर आपको ऐसा प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो दिखाई दे, यहाँ पे है, इस डायग्राम में है, ठीक है, तो उसका मतलब ये है कि वो टीएस यहाँ से लिया गया है। वो टीएस कहाँ से लिया गया है, वो टीएस प्रोटोप्लाज्मिक शीथ के साथ लिया गया है। आप ऐसा समझो कि ये रिंग नहीं है, ठीक है, ऐसे ही क्या है, 9 डबलेट्स हैं, सेंट्रल कैनाल है और वो कनेक्टेड है, ये बाहर का प्लाज्मा मेम्ब्रेन लेयर नहीं है। तो उसका मतलब ये है कि वो टीएस जो यहाँ से लिया गया है सिर्फ फ्लैजेला का पार्ट है वो, ठीक है। लेकिन जब हम प्रोटोप्लाज्मिक शीथ का पार्ट जो वहाँ से टीएस लेंगे तो वो आपको सरफेस पे ऐसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसका लेयर जो है वो मिलेगा। ओके, इसके अलावा अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो आर्म हमने बोले, कौन कौन से आर्म, आउटर आर्म, इनर आर्म, वो किसके पार्ट है, वो ए माइक्रोट्यूब्यूल के साथ कनेक्टेड है, वो भी डायनिन प्रोटीन से बने हैं। किससे बने हैं, डायनिन प्रोटीन से। तो डायनिन प्रोटीन जो है वो कहाँ कहाँ पे, एक तो सेंट्रल ट्यूब्यूल, वहाँ पे क्या है, डायनिन प्रोटीन, और उसके अलावा डबलेट जितने हैं उसमें हर एक ए माइक्रोट्यूब्यूल के साथ जो आउटर इनर आर्म है दैट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ डायनिन प्रोटीन। ओके, तो डायनिन कंप्लीट हुआ। अब नेक्सिन कहाँ पे, ए बी लिंकर जो है वो ही सिर्फ क्या है, नेक्सिन है। ओके, अब ट्यूब्यूलिन कहाँ पे, हर एक डबलेट में ए और बी सब यूनिट है वो ट्यूब्यूलिन प्रोटीन है, ठीक है। तो तीनों चीजें आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब देखिए ये जो पूरा ब्लू पार्ट है दैट इज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये जो पूरा पार्ट है वो क्या है, इट इज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये पार्ट जो है वो क्या हुआ, दिस वन इज नथिंग बट द साइटोप्लाज्मिक पार्ट, ये जो है वो क्या है, इट इज अ साइटोप्लाज्मिक पार्ट, हाँ या ना। ओके, अब मेम्ब्रेन के पास देखिए क्या है, बेसल बॉडी, मेम्ब्रेन के पास क्या है, बेसल बॉडी। तो बेसल बॉडी जो है दैट विल रिमेन टूवर्ड्स द, कहाँ पे, साइटोप्लाज्मा की ओर। अब बेसल बॉडी जो है उसमें उसका जब हम टीएस लेंगे तो वहां पे ट्रिपलेट होंगे, क्या होंगे, ट्रिपलेट। अब ये चीज जो याद रखना कि देखिए जब हम बात कर रहे हैं किसकी, सिलिया एंड फ्लैजेला, तो ये दोनों का इंटरनल स्ट्रक्चर जो वो सेम है, वैसे ही सेंट्रियोल एंड बेसल बॉडी, इन दोनों का स्ट्रक्चर जो वो भी कैसा है, इंटरनल स्ट्रक्चर सेम। अगेन सिलिया फ्लैजेला का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा, सेम वे बेसल बॉडी और सेंट्रियोल का भी इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, सेम। उसमें क्या होंगे, ट्रिपलेट होंगे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। लेकिन सिलिया और फ्लैजेला डेवलप कहाँ से होते हैं, वो बेसल बॉडी से होते हैं, ठीक है। और वो बेसल बॉडी जो है वो कैसा फॉर्म है, ट्रिपलेट। तो अगर बेसल बॉडी का आप टीएस लोगे तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसे दिखेगा, ट्रिपलेट फॉर्म में। लेकिन जब हम सिलिया और फ्लैजेला का सिर्फ लेंगे अगर टीएस, तो वो किससे बना होगा, 2 सेंट्रल कैनाल एंड 9 पेरिफेरल डबलेट। आई होप कि यह सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे हम डिटेल लेते हैं इसकी। ओके, बी सब यूनिट, ये सब हम पढ़ चुके हैं। बी सब यूनिट इज स्लाइटली आउटर एंड इज फॉर्म्ड बाय 10 प्रोटोफिलामेंट। ए सब यूनिट किससे बना था, 13 प्रोटोफिलामेंट। बी सब यूनिट जो है वो 10 प्रोटोफिलामेंट। ओके, ऑल पेरिफेरल डबलेट आर इंटरकनेक्टेड बाय ए बी लिंकर, और ए बी लिंकर जो है वो क्या है, इट इज नथिंग बट द नेक्सिन प्रोटीन, ठीक है। ओके, केमिकली सेंट्रल ट्यूब्यूल आर फॉर्म्ड ऑफ डायनिन प्रोटीन। अभी हमने बताया सेंट्रल ट्यूब्यूल जो किससे बना है, डायनिन प्रोटीन से बना है,
which act as a ATPase enzyme which hydrolyzes ATP and ciliary flagella movement. जब सेंट्रल ट्यूब्यूल जो है वो डायनिन प्रोटीन है, डायनिन प्रोटीन एक्ट एज एटीपीएज एंजाइम, तो जब सेंट्रल ट्यूब्यूल जो मूवमेंट करेंगे तो उसके आसपास प्रोटीन शीट है वो भी मूवमेंट करेगा, और उसके साथ कनेक्ट कौन हो जाएगा, उसके साथ कनेक्ट जो है वो कौन हो जाएगा, बाहर के जो रेडियल स्पोक के जो बटन जैसे स्ट्रक्चर है वो, तो वो पूरा रेडियल स्पोक सारे जो है वो मूवमेंट करेंगे, मतलब पूरा जो डबलेट है 9 वो भी मूवमेंट करेंगे, मतलब सिलिया या फिर फ्लैजेला एंटायर जो है दैट परफॉर्म मूवमेंट। पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स आर मेड अप ऑफ ट्यूब्यूलिन प्रोटीन, जो 9 डबलेट्स हैं वो किससे बने हैं, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से। एंड इंटर डबलेट लिंकर आर मेड अप ऑफ, मतलब ए बी लिंकर वो किससे बना है, इट इज मेड अप ऑफ नेक्सिन प्रोटीन, वो किससे बना है, नेक्सिन प्रोटीन से, दैट इज ए बी लिंकर। सीलिया आर ऑफ 2 टाइप, सीलिया जो है उसके 2 टाइप हैं, ठीक है। अब वो 2 टाइप जो है वो कौन सा है वो हमको ध्यान से देखने पड़ेंगे। सीलिया आर ऑफ 2 टाइप, वन इज कीनोसिलिया, राइट, and the kinocilia is motile, right, and the other one is stereocilia, and stereocilia are non-motile। तो सिलिया जो है उसके 2 टाइप है, कौन कौन से, मोटाइल सिलिया एंड नॉन मोटाइल सिलिया। अब ये मोटाइल सिलिया जो है उसका काम क्या होगा, सपोजिंग दैट हियर वी हैव सिलिया, ठीक है, ये सिलिया है, सपोज दोनों सरफेस पे ये सिलिया है, तो ये सिलिया का फंक्शन क्या होगा, बेसिकली by the movement of this cilia it translocate the object from one part to the another। वो किसका काम है, मोटाइल सिलिया होगा तो, और उसको हम क्या बोलेंगे, कीनोसिलिया। कीनोसिलिया अगर मोटाइल है तो उसमें जो अरेंजमेंट होगा दैट इज 9+2, उसका मतलब क्या है 9 डबलेट्स, और 2 जो है वो कैसे होंगे, सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल। अगर मैं स्टीरियोसिलिया की बात करूं, स्टीरियोसिलिया आर नॉन मोटाइल बट सेंसरी इन नेचर, उसका नेचर कैसा है, सेंसरी नेचर है, तो उसका मतलब यह है कि जहाँ पे सेंसरी एपिथेलियम होगा वहाँ पे वो हो सकते हैं। ऐसे एक सेंसरी एपिथेलियम में ये सपोज मैंने सेंसरी सेल बनाया, दिस इज द सेंसरी सेल फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ टंग, मतलब यहाँ पे जो हम बना रहे हैं दैट इज गस्टेट और रिसेप्टर, हम जो बना रहे हैं वो क्या है, गस्टेट और रिसेप्टर। तो उसमें ये जो रिसेप्टिव सेल है दैट हैज दिस काइंड ऑफ सिलिया, और ये सिलिया कैसा है, दैट सिलिया इज नॉन मोटाइल, इट इज ऑल्सो नोन एज स्टीरियोसिलिया एंड इट इज सेंसरी इन नेचर, ठीक है। तो इसके ऊपर केमो रिसेप्टर है तो वो कैसा है, सेंसरी इन नेचर, लेकिन वो कैसा है, नॉन मोटाइल। अगर नॉन मोटाइल है तो उसमें अरेंजमेंट कैसा होगा, 9+0, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगर सिलिया कैसा है, कीनोसिलिया, मोटाइल सिलिया है, देन अरेंजमेंट वुड बी 9+2, राइट, 9 डबलेट्स एंड 2 सेंट्रल। लेकिन अगर वो कैसा है, स्टीरियोसिलिया, देन अरेंजमेंट वुड बी ओनली 9 डबलेट एंड 0 सेंट्रल कैनाल। ओके, सिलिया आर ऑफ 2 टाइप, one is motile that is kinocilia, other one is non-motile that is stereocilia। Kinocilia help in locomotion and capturing of food whereas stereocilia are sensory in nature। सारी चीज़ें जो हम मैंने यहाँ पे आपको डिटेल में बता दी है। चलिए नेक्स्ट जो there is ciliary movement are either metachronous, ciliary movement जो है वो कैसी हो सकती है, metachronous हो सकती है, in which cilia of transverse row मूव इन कोऑर्डिनेशन। ये सपोज सिलिया है ऐसे 2 सरफेस पे, यहाँ पे सिलिया है, यहाँ पे भी सिलिया है, सो सिलिया आर इन अ ट्रांसवर्स रो, कौन से फॉर्म में है, ट्रांसवर्स रो फॉर्म में है, और उसमें वो क्या करते हैं कि कोई पार्टिकल को एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, और दूसरे जो हैं उसमें सिलिया जो है कैसे होंगे, लॉन्जिट्यूडिनल, और उसमें भी सिंक्रोनाइजेशन से वो एक जगह से दूसरी जगह पे कोई पार्टिकल को लेके जा रहे हैं, राइट। सो सिलियरी मूवमेंट की अगर हम बात करें, ciliary movement are either metachronous in which cilia of transverse row move in coordination or synchronous cilia arrange in a longitudinal row and move in a coordination। वो डिपेंड करता है कि वो कौन सा बॉडी का पार्ट है, हम दोनों देखने वाले हैं, ठीक है, अलग अलग पार्ट में दोनों हम सिलिया देखेंगे, उसके मूवमेंट जो हम देखेंगे दैट इज मेटाक्रोनस एंड सिंक्रोनस। चलिए इसके अलावा अगर हम बात करें तो each cilium shows पावर स्ट्रोक एंड रिकवरी स्ट्रोक, ठीक है। पावर स्ट्रोक जो होगा कैसा होगा, इट इज अ फास्टर देन रिकवरी, पावर देन रिकवरी, पावर देन रिकवरी, इट इज लाइक अ स्विमिंग प्रोसेस। स्विमिंग प्रोसेस में जैसे ही हम पानी में हाथ डालते हैं दिस इज पावर, देन इट इज अ रिकवरी, देन अगेन पावर, देन इट इज रिकवरी। साइकिलिंग में भी ऐसा होता है, पावर देन रिकवरी, पावर देन रिकवरी, ये लेकिन किस में होता है, सिर्फ सिलिया में। हम ये किसकी बात कर रहे हैं, दैट इज अबाउट द सिलिया। फ्लैजेला में ऐसा होगा नहीं, फ्लैजेला में ऐसा नहीं होगा, ठीक है।
फ्लैजेलर मूवमेंट जो है वो थोड़ी अनड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन है, अनड्यूलेटिंग मूवमेंट है, अलग है वो, ठीक है। कैसे वो देखते हैं, ओके। फ्लैजेलर मूवमेंट इज बाय क्रिएटिंग अनड्यूलेटिंग वेव फ्रॉम बेस टू टिप। अगर हम बात करें तो ये सपोज फ्लैजेला है, राइट, और ये इसका क्या है, एक्सोनिमी, ठीक है। तो इसमें मूवमेंट जो यहाँ से डेवलप होगा और टेपरी एंड से क्या हो जाएगा, वो रिलीज हो जाएगा। तो बेस से स्टार्ट हो रहा है एंड इट विल रिलीज फ्रॉम द टेपरिंग एंड, उसको क्या बोलेंगे, अनड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे पावर रिकवरी स्ट्रोक नहीं है, पावर रिकवरी स्ट्रोक किसमें होगा, सिलिया में, फ्लैजेला में अनड्यूलेटिंग। ओके, सो let us talk again. Each cilium shows a power stroke and a recovery stroke. Flagellar movement is by creating undulating wave from base to tip. Base से लेके tip तक ऐसे undulating movement जो होगी, मतलब बेस से रिलीज, बेस से स्टार्ट होगी और टेपरी एंड से वो क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी, राइट। फ्लैजेला आर ऑल्सो टू टाइप। फ्लैजेला जो है वो भी, उसके भी दो टाइप है। एक जो है दैट इज वी प्लस, ये जो मैंने बनाया दैट इज वी प्लस। वी प्लस में क्या होगा, बेस इज ब्रॉडर एंड एंड इज टेपरी, उसको हम क्या बोलेंगे, वी प्लस, ठीक है, चाबुक जैसा है, दैट इज वी प्लस। ओके, दूसरा जो है वो कैसा होगा, उसको हम बोलेंगे टेंसल, ठीक है, जिसमें अगर हम बात करें तो दूसरा एंड जो है इट इज नॉट टेपरी एंड द डायमीटर इज रिमेन ऑलमोस्ट सिमिलर, ठीक है, और उसकी जो पेरिफेरल सरफेस होगी दैट कंटेन ब्रिसल्स, ऐसा स्ट्रक्चर होगा। दिस वन इज द टेंसल, द अपर वन वाज वी प्लस, ठीक है, अपर वाला जो है वो कैसा है, वी प्लस। फ्लैजेला आर ऑल्सो ऑफ टू टाइप, वी प्लस दैट इज ब्रॉड एट द बेस एंड टेपरी टुवर्ड्स द टिप, एंड द अदर वन इज टेंसल which has uniform diameter with the bristles. bristles जो है वो सरफेस पे होंगे, तो वो कैसा हो जाएगा, टेंसल। और ऐसे दोनों टाइप के विप्लस जो विप्लस एज वेल एज टेंसल, ये दोनों टाइप के फ्लैजेला भी बहुत सारे स्पोर में होते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे एट द टाइम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। चलिए, तो इसके अलावा फ्लैजेला हेल्प्स इन लोकोमोशन। फ्लैजेला का काम क्या है, लोकोमोशन, और सिलिया का मोस्टली काम क्या है, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम वन एंड टू द अनदर एंड। तो आई होप कि ये लेक्चर जो है उसके सारे कंटेंट जो आपको समझ में आ चुके होंगे। ये जो पार्ट है उसमें से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, और अगर आपको मुझसे पढ़ना अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ शेयर माय वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। यू कैन सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल इन विच यू गेट द वीडियो ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, ऑल द सब्जेक्ट, राइट। और हमारी जो टीम है बहुत ही डायनामिक टीम है, सारे जो टीचर्स हैं बहुत अच्छे हैं। In physics we have Pritam Kesri sir and Ankit Verma sir. In English medium section, in Gujarati medium we have Mihir Shah sir as well as Amin Moulia sir. In chemistry English medium we have Roy sir as well as Dr. Vinay Punefatha, and biology myself, ठीक है, विकास त्रिवेदी। तो बहुत ही अच्छे टीचर हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं, एक कंटेंट जो है वो लेवल तक का आपको दे रहे हैं। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून, लव यू ऑल। विद्यार्थी देवो भव, जय भारत।